Hello, everybody, and welcome back to the Chat Trap Show with Vikram Raval. I'm very glad to host this kind of a show where we meet amazing personalities. We come across amazing people. Every week on Saturday, हम लोग बहुत special guest के साथ आते हैं. And as always, whenever I say special, everyone is special. But हमारे guests थोड़े से ज़्यादा special होते हैं जब वो हमारे show पे आते हैं. And today, I'm going to welcome a very special guest. He is none other than Professor Ujjwal K Chowdhury. He's a very, very special guest to us, experienced in a lot of media education. He is a writer, a speaker. He's experienced in, he has also been earlier the Dean of Amity University, DGMC Media College. He's been the Dean of Mumbai University. So a lot of list goes on and on. And Sir has took out time. He's come especially here. He had an earlier commitment as well, and he's here today to speak to us on the special topic, which is what is the future of online education? And Dillistan, of course, being a big place where a big platform where we have a lot of youth, a lot of people from the Delhi University, people from other colleges in Delhi, NCR as well. They would love to listen to Sir and understand what we can talk about. So here we call and we welcome Professor Ujjwal K Chowdhury and see what he has to say today. Welcome, sir. How are you? Yes, very nice, very nice. कैसे Good हैं to आप? meet you. Good to meet you. Meet you rather on the webinar on this electronic mode after a very long time. It's sad that we haven't met for 150 days now. It's sad indeed. Sir, thank you so much. You took our time and you came to our show. I believe you had a previous commitment as well, and you're rushing again to another show. It's okay. It's okay. It's okay. Great, sir. So, Ananda Bajar Group organized a very beautiful webinar on executing true digital education in the real sense, not just Zoom sessions, but real digital education. What does it mean, and how is it to be communicated and executed and made engaging? All these were discussed over the last 3 hours on ABP webinar, Ananda Bajar Patrika webinar. wonderful. That's very nice. And the reason why also Dillistan has hosted this kind of a subject, this kind of a topic, is because we are, Dillistan is joined with a lot of youth today. A lot of people look up to this platform for a lot of news and entertainment. But this topic especially is going to help these young students, young people in their career who are actually looking forward to courses, diplomas, degrees, etc. And they're looking forward uh, how useful and how successful will online education be for them. So are we not only them, but in fact even the school students who are joined with us. These school students actually, the schools have now come up with a lot of different platforms which we've been using, starting from kindergarten to the different classes of online education को ही push किया जा रहा है. So I wanted to understand from you कि ये किस तरह से, how will it be successful? Is it actually working out? Do we have that kind of infrastructure? A lot of questions to come up with, but I want to hear a point of view and understand the basics. First of all, if you look at what is the impact, 27%, 28% people are largely on the online education just now. I'm talking of 28% of the 270 million students in the country at this point of time. They are active students, I mean. They are Right. largely on the online, and 73% are partially or completely not online. Partially means in form of WhatsApp chat groups and few things like that. But Okay. large part, and that could be above 50%, is completely out of the online learning. So that's a sad thing, no doubt. That's a digital divide. If the society is economically divided, it is bound Okay. to be digitally divided also. Having said this, it does not mean that the online education for those who can afford and those who have access shall not be done. Okay. भैया इस देश में 90% लोगों के पास गाड़ी नहीं है. इसका मतलब तो ये नहीं कि 10% लोग गाड़ी नहीं चढ़ेंगे. आपकी तो बड़ी अच्छी गाड़ी है. गलत क्या है? So it's like that. So while the rest of the people should aspire, if they want, for a vehicle, it does not stop those who can afford and have an access from having a vehicle.
The same thing. Digital learning and without a vehicle you can still survive. There are many people surviving very well, and there are public transport. There are many other ways of going transporting. But today, digital education is compulsory. You cannot practically survive without digital education. Having said this, I must clarify at the beginning. I am not talking about replacing physical education with digital education. मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हम हिंदी में कभी कभी बात कर सकते हैं ना, दिल्ली वाले हैं आप। बिल्कुल सर, दिल्ली वाले बिल्कुल कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, इंग्लिश में बात करते हैं। इनफैक्ट इस प्लेटफॉर्म को तो बहुत पसंद है इसी टाइप की लैंग्वेज, वो आप जैसे मर्जी बात करें, कोई भी नहीं। दिल वाले होते हैं। मैं दिल्ली में कई साल रह के आया हूँ पहले। मेरे 53-54 इयर्स की जिंदगी में कम से कम 7-8 साल मैंने दिल्ली में बिताया है। काफी दिल वाले होते हैं और भाषा के बारे में बड़े पंजाबी, हिंदी, अंग्रेजी मिक्स करके बातें करते हैं। सो इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी फन टू टॉक टू एंड दे लेस फॉर्मल, यू नो। बस वही ऑफिसेस में, सरकारी ऑफिसेस में थोड़ी फॉर्मेलिटी दिखती है, बाकी जगहों में तो बड़े जानदार लोग होते हैं। Coming back to the discussion, physical education is future. Physical plus digital दोनों का मिलन। कोई लोग इसको blended education बोलते हैं, कोई इसको hybrid education बोलते हैं। But we are going towards a physical education, whether you call it blended or hybrid. मैं क्यों physical बोलता हूँ? I consider physical education, face-to-face education as the foundation. That is at the base. इसलिए फिजिकल पहले, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर में डिजिटल एजुकेशन आएगा, ऑनलाइन एजुकेशन आएगा सुपर स्ट्रक्चर। सो फिजिकल प्लस डिजिटल इज फिजिकल। तो आगे जमाना फिजिकल एजुकेशन का, पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट आपको समझना होगा, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, हम 5 चीजों को कहते हैं एक अच्छी जिंदगी, एक डिसेंट जिंदगी बिताने के लिए, एक डिग्निफाइड जिंदगी बिताने के लिए ये 5 चीजें होनी चाहिए। रोटी, चाहे घी के साथ हो या ना हो, रोटी होनी चाहिए। मकान, आपकी तरह 3 मंजिला मकान हो या मेरी तरह छोटी कुटिया हो, लेकिन मकान होना चाहिए। नौकरी 10 लाख वाली नौकरी हो या 10,000 15,000 वाली नौकरी हो, लेकिन नौकरी होनी चाहिए। स्वास्थ्य सही रहनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए। और ये छठा जो चीज है, छठी चीज जो अभी कंपलसरी है, दैट इज डिजिटल एक्सेस, डिजिटल कनेक्टिविटी। अब ये 6 डिसेंट डिग्निफाइड जिंदगी के लिए ये छठा पॉइंट जरूरी है, 6th एस्पेक्ट जरूरी है। और अगर ये 6th एस्पेक्ट जो अभी 50% से कम लोगों के पास है, बाकी जो जनता है 60-65% के पास प्रॉपर डिजिटल एक्सेस नहीं। पहले मैं कह दूं, भारत में 83 करोड़ स्मार्टफोन बिक चुके हैं अभी तक। एंड्रॉइड हो, आईओएस हो, जो भी हो, स्मार्टफोन 83 करोड़ बिक चुके हैं भारत में जब से ये फोन लॉन्च हुआ है तब से। मैं मान लेता हूं आपके पास 3 होंगे, मेरे पास तो वैसे एक ही है, लेकिन कई लोगों के पास 2 हैं, मुझे मालूम है। सो अगर ये 83 करोड़ वालों को हम अगर 2-3 वाले हटा दें, तो भी 60 करोड़ जनता के पास कम से कम एक स्मार्टफोन है, मेरी तरह एक स्मार्टफोन। तो ये 60 करोड़ जनता, 133 करोड़ जनता के अंदर, वैसे बच्चों के हाथ में हम स्मार्टफोन देना जल्दी से जल्दी मना करते हैं कितना, और बच्चे भी करीबन 10-15 करोड़ हैं। सो मान लेते हैं कि आधी जनता जो एडल्ट जनता है या थोड़े बड़े हो गए, आधी जनता या उससे थोड़ा ज्यादा उनके पास स्मार्टफोन है। सो डिजिटल एक्सेस आधी जनता के पास हो गई है, बाकी आधी के पास है नहीं। और जो आधी के पास डिजिटल एक्सेस है, उनके सबके पास इक्वल अमाउंट ऑफ नेट कनेक्टिविटी नहीं है, और भारत के हर अंश में इजी और नेट कनेक्टिविटी भी नहीं है, ये बात भी सच है। अब जब डिजिटल एजुकेशन आ गया है, चूंकि पैंडेमिक चल रहा है, पैंडेमिक विक्रम जी आपने भी नहीं लाया, हमने भी नहीं लाया शिक्षक तरीके से, आप एक मीडिया प्रोफेशनल आप भी नहीं लाया, भारत के प्रधानमंत्री ने भी नहीं लाया। ये एक माहौल है जो जिस माहौल में ये बना है। अब उसमें हम नहीं जाते कि कैसे शुरू हुआ क्या नहीं है, लेकिन पैंडेमिक जब हो गया है, हमें मजबूरन घर पे रहना पड़ रहा है अपने स्वास्थ्य के लिए। कम से कम बच्चों को हम थोड़े काम काज तो शुरू कर दिए हैं, लेकिन बच्चों को रहना पड़ रहा है। अभी तक हमें 31 जुलाई तक स्कूल कॉलेज को बंद रखने की बात कही गई है। जिस तरह संख्या बढ़ रही है इन्फेक्शन की, ये 31 जुलाई, इट मे बी एक्सटेंडेड टू सितंबर, टिल सितंबर आल्सो, वी डोंट नो। So the situation is that digital education is a reality that has been imposed on us at this point of time.
अब आप दो चीज कर सकते हैं, हमसे ना हो पाएगा बोल के घर पे बैठ सकते, या फिर चलो यार एक नई चीज करते हैं, घर पे बैठे पैंडेमिक में ये भी देख लेते हैं, ये कर सकते हैं। तो मैं दूसरे के फेवर में हूँ। देखिए आपकी उम्र केवल 30 साल है, मेरा उम्र 50 के ऊपर है, मैं आपसे सीख रहा हूँ स्ट्रीम यार्ड कैसे चलाया जाता है, स्ट्रीम यार्ड में कैसे आना होता है। मैं जूम जानता था, गूगल जानता था, वेबएक्स जानता था, स्काइप जानता था, आपने स्ट्रीम यार्ड सिखा दी, अच्छी बात है, पहली बार स्ट्रीम यार्ड में बात कर रहे हैं। तो इसी तरह एक नई चीज सीखने का, पहली बार सीखने का एक नया एक ख्वाहिश में होनी चाहिए। तो उस जगह से जिनके पास एक्सेस नहीं है उनके लिए मैं कहूंगा एक दूसरी बात, पहला पॉइंट, क्यों एक्सेस नहीं है? हम डिजिटल इंडिया की बात 6 साल से सुन रहे हैं, अब ये पैंडेमिक और डिजिटल एजुकेशन ने दिखा दिया कि डिजिटल इंडिया का सच्चाई क्या है। आधी जनता के पास तो डिजिटल एक्सेस है ही नहीं, तो डिजिटल इंडिया कहां बना? डिजिटल धनी इंडिया बना, डिजिटल रिच इंडिया बना, डिजिटल कनेक्टेड इंडिया बना। तो डिस्कनेक्टेड गरीब, डिस्कनेक्टेड नॉन एलिट इंडिया का क्या होगा? तो इसमें मेरा कहना यह है, 2.4% भारत की शिक्षा बजट है, टोटल बजट का अंश 2.4%। So the education budget share of the total union budget is 2.4%. But in more than 130 countries out of 244 countries, 130 देशों से ज्यादा देशों में 5% of the annual budget is 5 or more. Annual budget is your education budget. बांग्लादेश हमारे बाजू में है, 8% एजुकेशन बजट। हमारे बाजू में नेपाल है, 9% एजुकेशन बजट है, और श्रीलंका के लिए 11% एजुकेशन बजट है। भारत के राज्यों में अगर चले जाए तो 5% बहुत कम का है, 6% तमिलनाडु का है, 5.9% केरला का है, 5.1% बंगाल का है, और आप जिस दिल्ली में बैठे हो 26% दिल्ली सरकार का एजुकेशन के लिए, 26%। तो मेरा पहला पॉइंट यही है कि भारत सरकार से निवेदन है, एक शिक्षक तरीके एक निवेदन है, जो 50% स्टूडेंट मेरे हमारे देश के डिजिटल में नहीं आ पा रहे, आप दया करके, कृपा करके आप 5% एजुकेशन बजट कर दीजिए, 2021 से ही चालू कराइए, 20 से ही चालू कराइए, कम से कम 21 से। और ये जो एडिशनल पैसा है ये पूरी तरह डिजिटल एक्सेस तैयार करने में डालिए, सारे देश का डिजिटल एक्सेस बन जाए, ये जरूरी है। और दूसरा पॉइंट है, 2% प्रॉफिट हर कंपनी को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कानूनन खर्चा करना पड़ता है। You must be knowing that CSR 2% is compulsory now out of the profit. मैं सारे कंपनी से गुजारिश करता हूं, 2% और किसी चीज में मत खर्चिए इस बार, अगला 2 साल केवल डिजिटल एक्सेस में खर्चिए। हर बच्चे के हर घर में, हर स्कूल के, सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, हर गांव के अंदर के कॉलेज तक ले जाइए, स्कूल तक ले जाइए डिजिटल एक्सेस। डिजिटल एक्सेस ले जाने के लिए आपको वहां कंप्यूटर डालना होगा, आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी कराना होगा, और बच्चों के कुछ, कम से कम सारे बच्चे नहीं हो, 3-3, 4-4 बच्चों के देश में स्मार्टफोन देना पड़ेगा जी। जैसा आप बोल रहे हैं कि 22 मिलियन घरों की लड़ाई चल रही है, 22 मिलियन हाउसिंग, उसी तरह 5 मिलियन मोबाइल की एक लड़ाई करिए, 5 मिलियन मोबाइल, 5 मिलियन नए लोगों के हाथ में मोबाइल दीजिए एजुकेशन पर्पस के लिए। सो सीएसआर का खर्चा, गवर्नमेंट का डबलिंग ऑफ द बजट, डिजिटल एक्सेस, डिजिटल डिवाइड को तो रोक सकता है, डिजिटल एक्सेस को बढ़ा सकता है। तीसरा पॉइंट है कि आप जो एनजीओ काम करते हैं, जो हमारे इंडिविजुअल घरों में पुराना मोबाइल पड़ा हुआ है, कोई काम पे नहीं लगता है, हम पुराने कपड़े बहुत लोगों को देते हैं, अगर फटा हुआ नहीं है, बिगड़ा हुआ नहीं है, पुराने कपड़े जो हमारे टाइट हो गया या नहीं पहनते, उसको हम लोगों को देते हैं, लेस फॉर्चुनेट लोगों को देते हैं। तो पुराना मोबाइल भी दे दीजिए ना, पुराना मोबाइल अपने घर में काम करने वाले बाई के बच्चों की पढ़ाई के लिए उनको दे दीजिए ना, आपके ड्राइवर के बच्चों को दे दीजिए ना, आसपास के दुकानदार के जो छोटे दुकान चलाते हैं उनके बच्चों को दे दीजिए, जो लाड़ी गल्ला चलाते हैं और सब्जी बेचते हैं उनके बच्चों को दे दीजिए। तो एक मोबाइल देने से आपका 1 या 2 बच्चा उसमें आ जाएगा। आपको सोचना होगा कि इसमें केरला में अभी खबर आई है, क्लास 9 की एक लड़की ने खुदकुशी की है बिकॉज शी इज अनेबल टू एक्सेस डिजिटल लर्निंग। सो क्या हम इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बना सकते हैं कि पुराने मोबाइल को दे दें? क्या हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बना सकते हैं कि कंपनियां अपनी प्रॉफिट का 2% लोगों को डिजिटल एक्सेस करने में दे दें? क्या हम सरकार से गुजारिश कर सकते हैं कि बाकी देशों की तरह और हमारे देश के कई राज्यों की तरह आप नेशनल लेवल पे भी 2.5% से नीचे जो बजट है एजुकेशन का, उसको 5% बना के डबल कर दीजिए, और ये डबल वाला पैसा कंप्लीटली डिजिटल एक्सेस पे डालिए।
जैसे बहुत सारे सरकार, एक समय यूपी सरकार, अभी बंगाल और बिहार सरकार क्लास 10 पास करने पे लड़कियों को साइकिल देते हैं। अब साइकिल की जगह में आईपॉड पैड दे दीजिए, टैब दे दीजिए, टैब ऑलमोस्ट सेम दाम, थोड़ा 500 रुपए ज्यादा होगा, मास स्केल में लेंगे, लोएस्ट कॉस्ट में लेंगे तो टैब मिल जाएगा। सो द पॉइंट इज दैट वी हैव टू क्रिएट। एक समय आपने गांव के पंचायतों को टेलीविजन सेट दिया था सरकारों ने, आप कंप्यूटर दीजिए, कंप्यूटर एक्सेस कराइए, डिजिटल एक्सेस कराइए। So we need to have this connectivity. This is point one. Point two is that telecom companies जो आप टैरिफ बनाते हैं, एक के बाद जियो, एक के बाद एक टेलीकॉम कंपनी, जियो तो खाते जा रहा है, जियो सबको इनगल्फ कर ले रहा है। अब इसके बाद अगर जियो एकमात्र और सरकारी बीएसएनएल, ये दो ही रह गया, और बीएसएनएल तो हालत में अच्छी नहीं है, तो जियो ने अपने कॉस्ट बढ़ा दिए, 3 गुना कर दिया, तो सबको तकलीफ होगी। जैसे आप ट्रेन में, बस में बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए, उनका अगर आईडी कार्ड है, वैलिड आईडी कार्ड है, तो उन्हें आप कंसेशन देते हैं ना टिकट का जी। और आपके दिल्ली में तो सरकारी ट्रांसपोर्ट में, बसों में लेडीज को सारों को फ्री भी किया हुआ। तो क्या आप बच्चों को, स्टूडेंट्स को हाफ कॉस्ट या लेस देन हाफ कॉस्ट में टेलीकॉम कनेक्टिविटी नहीं दे सकते? क्या नेटवर्क नहीं दे सकते? नेटवर्क कॉस्ट जो भी है हमारे आपके लिए फिर भी मैनेजेबल है, हम कुछ कमा लेते हैं, लॉकडाउन के बाजार में हम कुछ कमा ले रहे हैं, लेकिन जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए लाइए। सो ये सब मेरे सारे पॉइंट हुए डिजिटल एक्सेस के बारे में। अब डिजिटल एजुकेशन के बारे में आते हैं। जूम में एक क्लास लेना केवल डिजिटल एक्सेस का एजुकेशन नहीं है। गूगल क्लास ले लेना केवल डिजिटल क्लास नहीं है। व्हाट्सएप पे एक मैटर भेज देना डिजिटल क्लास नहीं है, लेकिन ये जरूरी है। गूगल क्लास लेना, क्लासरूम है, गूगल का क्लासरूम है, वो जरूरी है। जूम में एक्सेस होना भी जरूरी है, व्हाट्सएप में मैटर भेजना भी जरूरी है, लेकिन नए मैटर सिलेक्ट करना होगा। पुराना भाषण मैंने जूम में दे दिया, पुरानी जो किताब है उसको मैंने क्लिक किया पिक्चर्स में, उसका पीडीएफ बनाया और डाल दिया, वो एजुकेशन नहीं है डिजिटल। अब डिजिटल एजुकेशन के लिए मैं एक टॉपिक लेता हूं, आप यू गिव मी अ टॉपिक, कोई भी बताइए, स्कूल का लेवल का कोई एक टॉपिक बताइए जो जिसका मेरे कोर्स में होगा, कोई भी टॉपिक, साइंस, नॉन साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी। कुछ भी ले लीजिए, बायोलॉजी ले लीजिए, बायोलॉजी का एक टॉपिक लीजिए, स्पेसिफिक लीजिए, फोटोसिंथेसिस ले लीजिए। हाँ जी, ठीक है। अभी मैं बायोलॉजी का टीचर हूँ, आज समझो क्लास 5 या 7 के लिए फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अपने मोबाइल से खुद ही 5 मिनट का वीडियो बना सकता हूँ फोटोसिंथेसिस पे। अब और इसे मैं व्हाट्सएप ग्रुप में दे सकता हूँ मेरे बच्चों के। ये पहला पॉइंट हुआ। हम इन्हें लर्निंग रिसोर्सेज बोलेंगे। फर्स्ट लर्निंग रिसोर्स माई सेल्फ वीडियो। इफ द स्टूडेंट्स डोंट हैव अ वेरी गुड नेटवर्क कनेक्टिविटी, तो मैं ऑडियो बना के व्हाट्सएप ग्रुप में डाला, पॉडकास्ट बनाया, एक तरह से पॉडकास्ट। तो ये दूसरा लर्निंग रिसोर्स है। फिर मैंने पावर पॉइंट बनाया, सिंपल पावर पॉइंट जो फोटोग्राफ और ये सब के साथ फोटोसिंथेसिस को समझाया अच्छी तरह, और वो पावर पॉइंट को मैंने ईमेल में शेयर किया, ग्रुप ईमेल जो होता है बैच का। ये थर्ड लर्निंग रिसोर्स है। फोर्थ, मैंने जो वो किताब भी उनके पास होगा ही, अभी पहले से ही होगा, तो उस किताब का मैंने जो टॉपिक था फोटोसिंथेसिस का चैप्टर, मैंने उसको एसेंस को बता दिया ऑलरेडी। अब वो चैप्टर किताब है तो किताब भी एक बार देख ले। तो चौथा लर्निंग रिसोर्स है। फोटोसिंथेसिस को समझाकर किसी और ने वीडियो पे, उसमें फोटोसिंथेसिस पूरा प्रोसेस, अपना वीडियो नहीं, एक पीछे साउंड चल रहा है, पीछे कमेंट्री चल रही है, सामने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस समझाया गया है, ऐसा वीडियो और यूट्यूब में है। हम उसको डाउनलोड किए, वो यूट्यूब लिंक को मैंने शेयर किया बच्चों के साथ। मेरा छठा वीडियो, पांचवा लर्निंग रिसोर्स होगा। पांचवा लर्निंग रिसोर्स होगा। एक क्रिएटिव और एंगेजिंग हो गया ना एक तरीके से। एकदम। फिर मैंने एक गूगल फॉर्म में क्वेश्चनर बनाया, कितना समझा बच्चे ने फोटोसिंथेसिस समझने के लिए। फिर वो फॉर्म को मैंने शेयर किया थ्रू द मतलब ईमेल में भी शेयर कर सकता हूँ, मैं गूगल क्लासरूम में भी डाल सकता हूँ, या व्हाट्सएप में भी शेयर कर सकता हूँ। व्हाट्सएप सबसे सहज है, व्हाट्सएप में सहज किया, और मुझे उन्हें टाइम दिया, 10 मिनट टाइम दिया, 20 मिनट टाइम दिया। ये टाइम में मैं फॉर्म से मतलब क्वेश्चन शेयर करूंगा, उसी का बस 20 मिनट के अंदर तुम्हें जवाब देना। तो उसने ऑनलाइन में जवाब दिया, तो वो कितना समझा। अब वो उस 20 मिनट में तो सारा चीज पढ़ना और सुनना तो कर नहीं सकता, तो वो पहले से पढ़ा सुना रहेगा तो ही वो कर पाएगा। चाहे भले वो किताब खोल के रखे तो भी, तो वो 10 मिनट या 20 मिनट का ही टास्क है। तो इसी तरह मैंने टेस्ट लिया। सो जब मैं मल्टीपल सोर्सेस, व्हेन आई कलेक्ट, एग्रीगेट लर्निंग रिसोर्सेस फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस,
audio, video, text, infographics, and PDF, YouTube link, ये सारे चीज को जब मैं एग्रीगेट करता हूँ किसी भी टॉपिक पे और कई सोर्सेस से बच्चों से शेयर करता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप, ईमेल, गूगल क्लासरूम, कहीं से भी शेयर करता हूँ और फिर मैं उसकी टेस्ट करता हूँ, that becomes online teaching and learning, ऑनलाइन मेंटरिंग। अब लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम जूम में बच्चों को बुला रहे हैं, सब बैठ गए, अब मैं एक भाषण दे रहा हूँ जैसा मैं अभी दे रहा हूँ और उसी को मैं ऑनलाइन टीचिंग बोल रहा हूँ, वो ऑनलाइन टीचिंग नहीं है। So this is the point that has to be understood. Real online learning and teaching or mentoring, I do not want to use the teacher word, मैं बताऊंगा क्यों। Online learning and mentoring का सबसे बड़ा process है when you aggregate knowledge from many sources and aggregate knowledge which are creative, aggregate knowledge which are very visually rich, charts हो, graphs हो, graphics हो, animation हो, animation फिल्म मानो फोटोसिंथेसिस पे 3 मिनट का एनिमेशन फिल्म अवेलेबल है यूट्यूब में, वो फिल्म को अगर शेयर किया जाए एकदम बच्चे के दिमाग में बैठ जाएगा, इतनी अच्छे से कहानी की तरह से बना हुआ है, अंग्रेजी में बना हुआ है, उसको हम हिंदी में भी बोल सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज अगर बताऊं कि सिर्फ डाउनलोड करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है शायद, क्योंकि स्ट्रीम यार्ड या फिर कोई और सॉफ्टवेयर है, वहां पे हम लिंक कर सकते हैं, एग्जैक्ट रियल टाइम स्क्रीन पे शेयर करके यूट्यूब की वीडियो चला सकते हैं ब्राउजर पे। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी इवन एन एक्स्ट्रा एफर्ट, जहाँ पे हम एक ब्राउजर खोलते हैं, उसको लिंक कर देते हैं रियल टाइम स्क्रीन से और उसी वक्त वो वहां पे प्ले हो जाता है सारे स्टूडेंट्स के सामने। सुपर, it's very simple. So I'm just sharing one of the things I know, for example. Very good. और इसी तरह हमें सबसे शेयर करते रहना चाहिए जी। एक चीज मैं जानता हूँ, एक चीज आप जानते हैं, एक चीज तीसरा जानता है, चौथा जानता है, चारों में शेयर हो गया तो चारों चीज चारों जन जान गए। बिल्कुल। अभी ये पहली बार कॉम्पिटिटिव एजुकेशन नहीं, कोलैबोरेटिव एजुकेशन चाहिए। स्कूलों के the teachers of different schools should not compete with one another as they have been doing so long. यूनिवर्सिटी, मैं तो यूनिवर्सिटी का प्रो वाइस चांसलर, एडामस यूनिवर्सिटी कलकत्ता का प्रो वाइस चांसलर। अभी आपने बताया पहले सिम्बायोसिस में था, एमईटी में डीन था, मुस्लिम यूनिवर्सिटी में डीन था, पर्ल एकेडमी में डीन था, अभी मैं प्रो वाइस चांसलर एडामस में हूं। लेकिन हम पहले सारे यूनिवर्सिटीज आपस में लड़ते रहते थे, एक तरह का कंपटीशन की जरूरत नहीं है। कोलैबोरेटिव एजुकेशन इज रिक्वायर्ड। जो प्रोसेस कोई यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है उसको हम शेयर कर सकते हैं, हमने कुछ डेवलप किया है उसको दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, और शुरू भी हुआ है। वैसे अभी जो प्रोग्राम एबीपी ने किया था उसमें एडामस का एक स्पीकर, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के एक स्पीकर और जेएनयू के एक स्पीकर थे, और तीनों ने अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस, ऑनलाइन लर्निंग के बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर किए। सुनने वाले 1700 लोग थे, 1700 लोग फ्रॉम 27 सिटीज, आउट ऑफ व्हिच 4 सिटीज आर अब्रॉड। तो ये शेयरिंग हुआ, एकदम प्रैक्टिकल शेयरिंग, और वहां पे हमने अपना पावर पॉइंट और लिंक भी सारे शेयर कर दिए ग्रुप में, चैट में। सो द पॉइंट इज वी आर मूविंग टुवर्ड्स कोलैबोरेटिव लर्निंग। ये भी एक नई बात है, कॉम्पिटिटिव लर्निंग नहीं, कोलैबोरेटिव लर्निंग। जो इसको नहीं समझेंगे, नहीं प्रैक्टिस करेंगे, वो रुक जाएंगे, वो पीछे पड़ जाएंगे। जितना ज्यादा कोलैबोरेट करेंगे, जितना ज्यादा शेयर करेंगे और पाएंगे, उतना ही आप एनरिच होंगे। But what is the secret? There is no secret as such. Everyone is sharing. Is sharing. Secret क्या है? Sharing knowledge. Yeah. आपकी अपने बोलने की ताकत में डिफरेंस हो सकती है, बिल्कुल। अदरवाइज प्लेटफॉर्म शेयर करना, कंटेंट शेयर करना कौन सी बड़ी बात है? बिल्कुल सही बात है। आपको कहने की जो शैली है उसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं, आपको कितनी जिस स्पीड में आप काम करते हो उसमें इंडिविजुअल पर्सनल डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन बाकी चीजें शेयर करने में क्या प्रॉब्लम है? एक ही हुआ। मैं दूसरा चीज विक्रम जी कहना चाहूंगा कि टीचर और स्टूडेंट 20वीं शताब्दी के कॉन्सेप्ट्स हैं, यहाँ तक कि 21वीं शताब्दी के पहले 5-7 साल तक भी सही है, लेकिन पिछले 7-8 सालों से टीचर और स्टूडेंट कॉन्सेप्ट बेकार होता जा रहा था। अब आफ्टर दिस पैंडेमिक द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट इज कंप्लीटली ऑब्सोलीट। व्हाई यू से? टीचर इज समवन who teaches based on a fixed structured syllabus. Mentor is someone who starts from a fixed syllabus but moves beyond the syllabus. Yeah. Teacher is someone who teaches in the school, in the classroom and in the class hour. Mentor is someone who guides the learner within and beyond the classroom, almost any time. A teacher is someone who is bothered about finishing the syllabus anyhow and asking a question for examination. Mentor is someone
who is bothered about people understanding, the learners understanding the concept rather than finishing the syllabus. And the mentor can even repeat, re-repeat till it is internalized and understood better. Yeah. A teacher is someone who is not bothered about non-syllabus aspects of life You normally. have to finish the course. But a mentor is someone who is bothered about your holistic growth. So mentor is also an agony uncle and an agony aunt, a career counselor also at times, someone who is a guru at times, in many ways. उल्टा स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट भी बदल रहा है. Student is someone who studies in the classroom. Learner is someone who uses classroom as a learning space and goes beyond the classroom to learn as well. A student is someone who is bothered about completing syllabus or studying within syllabus and becomes disturbed if someone tells something beyond syllabus. A learner is someone for whom syllabus is a starting point, is not limited by any syllabus. किसी टॉपिक में पसंद है तो वो डेप्थ इतना क्लास 10 में बैठ के 12 का लेवल का नॉलेज भी हो सकता है, कोई गलती नहीं है. अगर वो मेरा पसंद है यार, मुझे वो पसंद है, सो आई कैन गो डेप्थ. इसको कहते हैं ऑर्गेनिक लर्निंग. जो मुझे पसंद है मैं उसमें डेप्थ में जाऊंगा, अपने आप जाऊंगा, किसी को बोलने की जरूरत है. वो ऑर्गेनिक लर्निंग होता है. आज जो दूसरा जो हम करते हैं, जो नॉर्मली करते हैं स्कूल कॉलेज में, वो स्ट्रक्चर्ड इम्पोज्ड लर्निंग होता है. So तीसरा पॉइंट, learner student is someone who is bothered about marks, grades and degrees. Learner is bothered about understanding, using it for examinations and applying in lifetime. So marks, degrees are only a small byproduct, not the real product. Real product is my internalization, application and use in life. A student is someone who learns from a teacher only. A learner learns from the mentor, learns from books, learns online, learns from his own experiences, experiential learning, tajurbe ki shiksha, learns from others, classmates, peer learning, friends learning, peer learning, and learns from society at large. तो स्टूडेंट को अहंकार है कि मेरा डिग्री है, लर्नर को अहंकार नहीं है. जब वो एग्रीकल्चर देखता है तो बिना अनपढ़ किसान से वो सीखता है कि मेघ की तरफ, लुकिंग एट द क्लाउड, the kisan who is actually uneducated can tell whether the monsoon is coming or not. The student does not know it. The learner is ready to learn from the kisan. So the learner is ready to learn from everyone, young and old, educated, uneducated. But the student is fixated with degrees, diplomas and all that. आज मेंटर भी बदल, इवन मेंटर का भी प्रॉब्लम है, टीचर का भी प्रॉब्लम है. टीचर यूनिवर्सिटी, मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, लोग 20 साल पहले का पीएचडी का कागज का टुकड़ा हर समय दिखाते रहते, देखो मैंने डॉक्टरेट की थी, देखो मैंने डॉक्टरेट की थी 25 साल पहले, 30 साल पहले. वो नॉलेज का अभी शायद कोई यूज ही नहीं रहा और उसने अपने आप को अपग्रेड भी नहीं किया होगा, लेकिन दिखाते रहते, क्योंकि वही उसका, वही क्वालिफिकेशन उसका एकमात्र वो है, क्या कहते हैं, पासपोर्ट है. लेकिन जो मेंटर है उनके लिए वो डिग्री ठीक है, वो डिग्री ली थी मैंने जिसके कारण मुझे जॉब मिल गई, लेकिन वो भूल जाते हैं, वो नई चीजों में घुस जाते हैं, हर बार नई तरीके से री इन्वेंट करते हैं, हर बार नए तरीके से. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, यूजीसी सिस्टम है, सारी चीज जो सिस्टम अभी बना हुआ है, ये सब कागजों पे विश्वास करते हैं. आपने कहीं से भी कॉपी की, कुछ भी की, लेकिन आपने कंप्लीट की है. जो एक्चुअल स्टूडेंट लाइफ लर्नर के ऊपर उनका क्या इम्पैक्ट है वो देखते नहीं ज्यादातर. सब समय ऐसा नहीं है, हर जगह में ऐसा नहीं है, ज्यादातर. सो इसलिए मैं कहना चाहूंगा, फिजिकल दुनिया में या आज की डिजिटल दुनिया में टीचर और स्टूडेंट कॉन्सेप्ट ओल्ड है, लर्नर और मेंटर कॉन्सेप्ट नया है. आई वुड लाइक टू डिफाइन दिस. That's a very good point, and I think जहाँ पे जो हमें लोग सुन रहे हैं, lot of teachers, lot of mentors who are listening to us, I think sometimes we know all of these things, but we tend to move towards something which is already happening in a flow. हम शायद भूल जाते हैं while giving the education online that हम किस तरीके से दे रहे हैं. Are we following the regular track or not? Are we actually utilizing this medium or not? But जहाँ तक हमने जो बात करी है about how is it done or is it being done, क्या इसके effects जो students पे हैं, क्या इसका कोई time limit होना चाहिए? Is it being affected to the students in a way? Is there any pro? Is there any con? Because I've heard, for example, recently कि एक state की government ने इसको ban कर दिया है फिलहाल कुछ time के लिए. तो वहाँ पे obviously the students are saying a lot of things that why do you want to ban it? शायद इसका कोई alternate तरीका निकल सकता था. Maybe we could have thought of decreasing the number of hours on online education. हमारे बच्चों को affect हो रहा है mentally और physically, ये आप कैसे बता सकते हैं?
हमारे बच्चे तो इतनी गेम्स खेलते हैं मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, टाइम वेस्ट करते हैं। तो इस पे आप कैसे लाइट थ्रो करना चाहेंगे? विक्रम जी, अगर सारा ऑनलाइन एजुकेशन स्कूल कॉलेज की तरफ से बैन कर दे सरकार, तो बच्चों जी में अनहैप्पीनेस और बढ़ेगा, बिल्कुल। अनहैप्पीनेस क्वेश्चन बढ़ेगा, वायलेंस, सेंस ऑफ वायलेंस बढ़ेगा, जी फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, डिप्रेशन बढ़ेगा। चूंकि अभी कुछ ऑनलाइन एजुकेशन हो रहा है, अच्छा हो, बुरा हो, बीच का हो, जो भी हो, एटलीस्ट बिल्कुल। some level of online education is happening, therefore जी still the students are bonding, हाँ still जी। there is a learner and mentor bonding, and there is a friends यस bonding, a yes, peers bonding. there's a sense of sitting in a classroom attending some classes, I Yeah, am doing something, there is kind a of sense a of belonging, situation. there is a sense of Yes belonging, yes there is a yes sense of ownership, there is a sense of yes responsibility. और एक चीज right बताएं, क्लासरूम में आप डिसिप्लिन इंपोज कर सकते हो, ऑनलाइन में डिसिप्लिन वॉलंटरी होता है। सो अगर आपकी पढ़ाई की इंटरेस्टिंग हो, जैसा अभी सुनने वाले सुनते सुनते खाना बना सकते हैं, सुनते सुनते कुछ और बात कर सकते हैं, सुनते सुनते कुछ कोई ड्राइंग कर सकते हैं, कुछ ना कुछ जी और काम कर सकते हैं। दे मे नॉट बी बिल्कुल। फोकस्ड, बिकॉज इफ दे आर इंटरेस्टेड विद दिस डिस्कशन दे विल बी फोकस्ड। सो ये दुनिया का नियम है। ऑनलाइन में वॉलंटरी पार्टिसिपेशन है, वॉलंटरी बिल्कुल। पार्टिसिपेशन है, वॉलंटरी व्हेन इट इज वॉलंटरी पार्टिसिपेशन, a self discipline participation, then the content has to be very interesting. या जो कंटेंट, इसलिए ऑनलाइन क्लास में आपको वीडियो यूज करना, मेम यूज करना, ग्राफिक्स यूज करना, कार्टून यूज करना, एग्जाम्पल यूज करना, ड्रामेटाइज करना, ये बहुत जरूरी होता है। वो जो सही क्या कह रहे एनिमेटेड फिल्म्स यूज करना बहुत जरूरी होता है, और अपना सेल्फ वीडियो बना के भेजना, ये सब बहुत जरूरी होता है। हैं। सिर्फ एंगेजमेंट एंगेजमेंट, सिर्फ पावर पॉइंट और एक लेक्चर देना ऑनलाइन नहीं है, मैं पहले कह चुका। सो ऑनलाइन हैज टू बी मेड इंटरेस्टिंग, वन पॉइंट, बट यू डिड नॉट गिव लाइव ऑनलाइन मोर देन 2 hours अ डे। ओके काफी है, छोटे बच्चों के लिए तो 1 घंटा भी काफी है, जो क्लास 1 2 3 4 5 तक 1 घंटा भी काफी है। जी 5 6 6 7 के ऊपर से लेकर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी तक 2 घंटा, स्कूल क्लास 11 12 तक तो 2 घंटा 2.5 घंटा, कॉलेज में आप 3 घंटा तक भी जा सकते हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी। सो आप वो केस टू केस डिसाइड करें। मैं 3 घंटा के ऊपर जाने के फेवर में नहीं हूँ, लेकिन 3 घंटा आप बहुत ज्यादा है, मुझे तो 3 घंटे भी थोड़ा ज्यादा लगता है। 3 घंटा यूनिवर्सिटी लेवल में, बट जी स्कूल के जी बच्चों के लेवल में 1 या 1.5 या 2 इसके अंदर ही हाँ, रहना। उतना सो ही। इसमें ये कंटेंट लेकिन बहुत ही सोचा समझा कंटेंट होना चाहिए, बहुत ही जी केयरफुल कंटेंट होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट इंटरैक्टिव और डाउट क्लियरिंग, इस पे ज्यादा बातचीत हो तो अच्छा। बाकी कंटेंट आप जीमेल में और गूगल क्लासरूम में और व्हाट्सएप में दे दो, बच्चे अपनी सुविधा अनुसार देख लेंगे, हाँ सुविधा अनुसार देख लेंगे। और आप उनको पूछो, क्रिएटिव काम पूछो। एक स्कूल ने, मैं बहुत सारे स्कूल प्रिंसिपल के डिस्कशंस में, वेबिनार्स में गया हूँ, एक स्कूल बता रहा है, उन्होंने बच्चों को बोला रोज 1 मिनट का वीडियो देना है उनको, 1 मिनट का वीडियो, 1 मिनट का वीडियो, कोई इंटरेस्टिंग चीज जो नहीं सीखा, जी अगर एक गाना सीखा तो वो गाना का 1 मिनट तक गा के सुना के रिकॉर्ड बना करके दो। अगर वीडियो रिकॉर्ड कर पाओ तो सबसे अच्छा, नहीं तो कम से कम ऑडियो रिकॉर्ड करके दो। अगर कोई डांस सीखा तो 1 मिनट का डांस, वो 1 पैरा या 2 पैरा स्टांजा पे डांस करके उसको रिकॉर्ड करके भेजो। नया खाना बनाना सीखा है तो खाना को बनाते हुए और क्या कंप्लीट क्या हुआ 1 मिनट में बना के दो। बहुत लोग तो मोबाइल एडिटिंग भी सीख जा रहे हैं, थोड़ा वीडियो काट दिए यहाँ से फिर दूसरा जोड़ दिए, ये भी सीख रहे हैं। सो वो बना के भेजो। किसी ने स्टैंड अप कॉमेडी, 1 मिनट का स्टैंड अप कॉमेडी बना के भेजो। तो इस तरह के रोज एक क्रिएटिव काम, नया काम करने बोल रहे हैं, तो 40 बच्चे 40 मिनट भेजते हैं, इतना एंजॉय करते हैं बच्चे, इतना एंजॉय करते हैं, क्योंकि आपने स्टैंड अप कॉमेडी भेजा, मैंने डांस भेजा, और मेरे हमारे तीसरे दोस्त ने गाना भेजा, किसी ने खाना भेजा। ये सारी चीजें, इतना वैरायटी आता है रोज, बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हंस रहे हैं, स्टैंड अप कॉमेडी देख के हंस रहे हैं, दूसरे क्लासमेट का डांस देख के हंस रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं, कभी कभी हंस भी रहे हैं अगर अच्छा डांस नहीं हुआ तो। गाना हुआ तो बोले देखो ये गाना नहीं गा पाया, मैं इसको बेहतर गा के सुना के अगला दिन भेजूंगा। सो कभी कभी अप्रिशिएट भी कर रहे, अरे ये बंदा गाना भी जानता है। सो दिस इज अ गुड फॉर मेंटल हेल्थ। अदरवाइज चिल्ड्रन, एंड दिस इज अ बिलोंगिंगनेस। 40 बच्चे रोज एक दूसरे का क्रिएटिव काम देखते देखते एक दूसरे के प्रति एक दूसरा रिस्पेक्ट आ जाएगा, एक दूसरा बिलोंगिंगनेस आ जाएगा, एक रिलेशनशिप डेवलप कर जाएगा। फिर अपने आप के गाने चेक करेगा, यार तेरा वो गाना मस्त था। हाँ बोलिए। And they would look forward to it every day is what I wanted to add.
every day. They will look forward. They will not कि यार मेरी क्लास है. मतलब इस तरह का नहीं होगा एक तरीका. So अरे I वो agree. प्रिंसिपल ने कहा बच्चे तो बच्चे, प्रिंसिपल खुद लुक फॉरवर्ड टू दिस, लुक फॉरवर्ड टू Very दिस। true. वो Very खुद true. वेट करती है कि बच्चों का वीडियो सब कब आएगा। हाँ. हर एक क्लास का अलग अलग बैच ग्रुप बना हुआ है ना, व्हाट्सएप ग्रुप। बिल्कुल. तो ये एक पॉइंट हुआ। किसी एक स्कूल में शुरू किया कि 3 नए शब्द सीखो रोज। Yeah. जो शब्द तुम नहीं जानते थे, you find 3 words from newspapers, magazines, books, anywhere which you did not know, and write the meaning of that word and use it in one sentence and then put it in the WhatsApp chat. And these WhatsApp chat of 40 students, so 120 words, इसमें 40 वर्ड कॉमन होंगे, तो 80 नए शब्द हर बच्चे सीख रहे हैं एवरी डे। 80 में बहुत कुछ भूल जाएंगे, कोई बात नहीं, अपना 3 तो याद रखेंगे और अपने नजदीक वाले दोस्तों का 10-15 तो याद रखेंगे। बिल्कुल। और उन्होंने कहा है कि पर्सनल डिक्शनरी बनाओ, और बच्चे पर्सनल डिक्शनरी बना रहे हैं, ऑनलाइन डिक्शनरी, माने चैट बॉक्स में डिक्शनरी बना रहे हैं, व्हाट्सएप चैट में। ये डिक्शनरी वर्ड, एंड फिर उन्होंने बोला कि इसकी एक नोटबुक बनाओ जिसमें ये सब वो सब भी लिखोगे और ये ले आओगे, बाद में जब हम फिजिकली मिलेंगे तो वो नोटबुक सबमिट करोगे। सो अपना पर्सनल डिक्शनरी समझो, विक्रम्स डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, उज्जवल्स डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश वर्ड। कितना बड़ा सेंस ऑफ प्राइड, लर्निंग भी हो रहा है। दिस इज अ न्यू टेक्निक। अरे मेरठ में बच्चों के पास फोन नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, तो एक हेडमास्टर बहुत दुखी होकर कि नहीं ये हो नहीं सकता, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उस मोहल्ले में, गरीबों का मोहल्ला था, उस मोहल्ले में उसने माइक लगाकर हर क्लास के लिए 1 घंटा पढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा। क्लास 5 से शुरू किया, 5, 6, 7, 8, 4 घंटा वो पढ़ाता था। उसका स्कूल 8 तक था, उनका स्कूल अप टू 8 तक था, तो 5, 6, 7 के लिए 4 घंटा पढ़ाना शुरू कर दिया। सुबह 9 से 10 क्लास 5, 10 से 11 क्लास 6, 11 से 12 क्लास 7, पढ़ाना शुरू कर दिया उन्होंने फोन पे, सॉरी माइक पे। बच्चे आज हम ये टॉपिक पर रहे, इसमें ये देखना है, ये सोचना है, ऐसा वैसा ऐसा वैसा करके बोलना शुरू कर। किताब तो उनके पास है ही है, बच्चों के पास। देखो अपना अपना रास्ता निकालना पड़ेगा। वी हैव टू फाइंड आवर ओन वेज, वी कैन नॉट लेट इट गो। आई नो इट इज नॉट ऑनलाइन एजुकेशन, दैट इज राइट, बट दैट इज एटलीस्ट अ इमीडिएट क्राइसिस सॉल्यूशन from remote learning, of remote learning, for those poorer kids who otherwise think that हमने क्या गुनाह किया अल्लाह या भगवान कि हमें पढ़ाई नहीं मिल रहा है लेकिन बाकी स्कूल के बच्चे पढ़ रहे हैं। So for them at least some way, so we need to understand that we need to be compassionate. डंडा मार के नहीं करना है ऑनलाइन में, डांट पीट के नहीं करना है, प्यार से समझाना है। It is in your interest. You need to get back. If you don't get back, it is your loss. Right. You need to tell that. And the teachers have to learn. There is a huge necessity of teachers training to understand Zoom में भाषण देना ऑनलाइन नहीं है, किताब के पन्नों के पिक्चर मोबाइल से निकाल के भेजना वो ऑनलाइन नहीं है। ऑनलाइन इज मच मोर, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस। इवन पेरेंट्स नीड टू बी सेंसिटाइज्ड। पेरेंट्स भी है जिनको सेंसिटाइजेशन चाहिए। छोटे छोटे बच्चों के कंधे के पीछे खड़े रहते हैं, इधर बच्चे अपने लैपटॉप में देख रहे हैं, पीछे पेरेंट्स कमेंट कर रहे हैं। कौन सा टीचर को इंटरेस्ट रहेगा ऐसा बात ऐसे समय में पढ़ाते हुए? और अगर 40 बच्चों के 40 पेरेंट्स ये करने लग गए, 80 जन, हैंडल करना संभव होगा? अब ऐसा भी केसेस आया है कि 2 अलग अलग बच्चों के 2 पेरेंट्स डिबेट करने लग गए ऑन कैमरा, डिबेट करने, नहीं ऐसा ऐसा ही होता है, और दूसरा बोल नहीं ऐसा ऐसा ही होता है। एंड देन द टीचर हैड टू म्यूट देम। उन्होंने बच्चों को खोल के रखा था म्यूट को, और म्यूट करके रखा था कि बच्चे थोड़ा एक्सप्रेस करें। बस पेरेंट्स लड़ने लग गए तो वो म्यूट करना पड़ा। It is also a fun. This is also a situation now. But anyway, we are all learning in the process. It's okay. In the end, I would just ask you one thing, that क्या are we actually ready for all of this? I mean, affordability तो एक factor आता ही है कई जगहों पे, but उसके अलावा do we have the infrastructure to keep online education keep on going for some good time? And do you forecast this happening for some good time? Is what I wanted to ask you in the end. I don't think purely digital education will be long term, and okay. It's not desirable okay. Also. Oh, but really? It's not at all. Purely digital is not desirable. Okay. Ideally, it should be physical, blended. Okay. Right. So going ahead, the next one year maybe, the governments may tell us that only have classes for 100 days. Just now it is for 230-40 days. Okay. Out of 365 days. 230 दिन का कम से कम क्लास होता है। कहीं
यूनिवर्सिटी में 250 दिनों का भी क्लास होता है जी लास्ट एग्जाम सब मिलाकर कैंपस में। अब आगे ये हो सकता है कि किसी भी बच्चे को 100 दिन से ज्यादा आप कैंपस में नहीं बुला सकते साल भर में, अगला साल ये हो सकता है। और इतना भी हो सकता है पहले 2-3 महीना तक तो अलाउ ही नहीं किया जैसा अभी चल रहा है। सो इन दैट केस वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट फिजिकल इज द ऑर्डर। जब क्लास में आएंगे वो बेस होगा, लेकिन हम डिजिटली पहले मटेरियल भेज देंगे। किताब तो हम फिजिकली दे दिए ऑलरेडी, किताब तो देना ही है फिजिकली। अब हम कुछ मैटर वेबसाइट पे सॉरी फेसबुक पे देंगे, फेसबुक के टाइमलाइन में देंगे। कुछ मैटर हम यूट्यूब से निकाल के भेजेंगे, कुछ मैटर हम व्हाट्सएप चैट ग्रुप में देंगे, कुछ मैटर हम ईमेल में देंगे और कुछ मैटर हम गूगल क्लासरूम में देंगे। अलग अलग टाइप के मैटर अलग अलग, लेकिन बच्चों को वो प्रैक्टिस जहां जो दिया वो शेयर भी कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में कि ये मैटर तुम्हारे से शेयर हो गया। और कुछ हम नेटिकेट्स बनाएंगे, नेट के एटिकेट्स, ऑनलाइन के एटिकेट्स होते हैं। कपड़े भी बहुत बच्चे बहुत सारे लोग बनियान पे बैठ जाते हैं और वीडियो चला के वो भी बनियान पहन के बैठ जाते हैं। दैट्स अ वेरी बैड एटिकेट। कोई कोई बोलता वक्त कोई और बीच में ना बोले तो अनम्यूट रखना, ऐसे बहुत सारे। ये तो मैं आपको कॉमन चीज बता रहा हूँ। 20-25 इंटरनेट के एटिकेट्स है जिसको हम लोग कहते हैं नेटिकेट्स, नेट एटिकेट्स से नेटिकेट्स। तो नेटिकेट्स सिखाना जरूरी है और गाइडलाइंस देना जरूरी है। बच्चों के गाइडलाइन मतलब लर्नर के गाइडलाइन, मेंटर के गाइडलाइन, पेरेंट्स के गाइडलाइंस। बहुत सारे स्कूलों ने गाइडलाइंस बनाया है, बहुत सारे ऐसे। ये गाइडलाइंस भी शेयर होनी चाहिए और ये शेयर रहे तो डिजिटल लर्निंग कुछ हद तक सही चलेगा। लेकिन फिजिकल इज द ऑर्डर, मतलब फिजिकल और डिजिटल दोनों एक साथ चलेगा। जो आप डिजिटल में देंगे उसको आप चेक करेंगे फिजिकली। आप अभी तो ओलैब्स के माध्यम से, सीबीएसई के वेबसाइट में है, ओलैब्स के माध्यम से वर्चुअल लेबोरेटरी या वर्चुअल लैब्स भी बन सकते हैं। लेकिन उसका जो लास्ट प्रैक्टिस है, जब आप केमिकल मिक्स करेंगे और नया केमिकल बनाएंगे या कुछ प्रैक्टिस करेंगे, वो आपको उसके आगे वाले मोड तक 60% काम जो लैब में करते हो वो अभी वर्चुअली कर सकते हैं। सिमिलर विद virtual studio, while you actually edit the film, that will be physical, but before that, introduction to all the equipments, introduction to all the functions, introduction to how you operate it, demonstration and manuals, and you may actually through a virtual reality sit in the studio, virtual studio, and already actually operate it. All this will be done, 60% of the work will be done virtually, last 40% you need to do physically. So this is the future of learning. हाँ, अभी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है क्या नहीं, दैट्स द क्वेश्चन। मैंने पहले इसके जवाब, मैंने पहले 5 पॉइंट बताया। हाँ जी, 5% एनुअल बजट को 5% करो और बाकी जो डबल हुआ बजट, ये डबल पैसा डिजिटल के लिए लगाओ। डोनेट अ मोबाइल, पुराना मोबाइल डोनेट करिए। देश भर में लोग, कम से कम 20 करोड़ लोगों के पास है एक्स्ट्रा मोबाइल, आप डोनेट करो। तीसरा पॉइंट, 2% ऑफ प्रॉफिट जो आप सीएसआर में खर्चा करते हो वो डिजिटल एक्सेस में खर्चा करो। तीसरा पॉइंट, डोनेट अ कंप्यूटर, लैपटॉप और कंप्यूटर, पुराने कंप्यूटर्स डोनेट करो। और पांचवा, आईटी कंपनीज बच्चों स्टूडेंट्स के लिए नया रेट बनाओ। जो नेट का जो रेट होता है, नेट पैकेज 50%, 60%, 70% कम दाम में नया नेट पैकेज बनाओ बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। वैलिड आई कार्ड जिसके पास। सो ये से 5-6 चीज करेंगे, और भी 1-2 चीज लोग बोल सकते हैं, करेंगे। और सबसे ऊपर, डिजिटल एक्सेस इज ए ह्यूमन राइट। डिजिटली कनेक्टेड होना मेरा मानव अधिकार है। इस बात को सरकार माने, जनता माने, मीडिया में इसको उछाला जाए और कॉर्पोरेट सेक्टर माने, एनजीओ माने, ये जरूरी है। और आप बहुत जल्दी देखोगे न्यू ह्यूमन राइट डेफिनेशन थ्रू डिजिटल एक्सेस। ये सब हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रॉब्लम बता रहे हो वो होगा। लेकिन जानिए, 10 साल हम जंप कर गए। 10-15 साल पहले जो सिचुएशन होता है वो हम अभी जंप कर रहे हैं पिछले 3 महीने में, और अगला 6 महीने में और बहुत आगे बढ़ेगा ये चीज। बिल्कुल बढ़िया, आपके पॉइंट्स बहुत इंटरेस्टिंग थे। एंड आई थिंक हमारे आसपास जितने भी स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड जितने भी मेंटर्स हैं, डीन्स हैं, बहुत सारे इनपुट्स मिले हैं। एंड जो इम्पोर्टेंट लोग हैं जो मैं लीड कर रहे हैं, अगर वो ये सुन रहे हैं प्रोग्राम, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि प्रोफेसर उज्जवल के चौधरी जी को सुने और उनके कुछ पॉइंट्स हैं उनको आगे कंसिडर करा जाए। एंड इट वाज अ लवली सेशन सर। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम अगेन एंड कमिंग टू आवर शो। बहुत अच्छा लगा हमें। एंड ऐसे ही अगर आपके पास जो हमें देख रहे हैं लोग, उनके पास कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज इनबॉक्स अस, वी विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, वी विल
ask sir and we will come back to you. जी sir, आप कुछ कह रहे थे? दिल्लिस्तान में आपने बुलाया, जो जी एक सर। यूथ प्लेटफॉर्म है, यंग जी। लोगों के प्लेटफॉर्म है, उसमें आपने दिल का यंग, उम्र का 50 से ज्यादा व्यक्ति को बुलाया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। अरे एक सर, सबके सीरियस लिए है ये। सीरियस टॉपिक आपने सीरियस टॉपिक उठाया, उसके लिए भी मैं आपको दाद देता हूँ। और मैं मानता हूँ इसी तरह से इंटरैक्टिव मोड पे लोग बातें करें, मिले। और एक बिल्कुल। आखिरी जाते जाते मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सोशल डिस्टेंसिंग इज अ बुलशिट। सोशल डिस्टेंसिंग पे विश्वास ना करें। फिजिकल डिस्टेंसिंग और सोशल फ्रेंडशिप या सोशल सॉलिडारिटी, इस पे विश्वास करें। फिजिकल बहुत बहुत अच्छी डिस्टेंसिंग बात। फिजिकल डिस्टेंसिंग चाहिए, लेकिन सोशल सॉलिडारिटी चाहिए। दिल्लिस्तान के माध्यम से विक्रम जी और सुनने वालों के साथ मैं सोशल सॉलिडारिटी निभा रहा हूं, जबकि मैं फिजिकली दूर हूं आपसे। हर हर इंसान एक दूसरे के साथ और नजदीक जाए, दिमागी और दिल के तरीके से और नजदीक जाए, भले शरीर की जगह से आप दूर रहे। दैट इज माई बहुत रिक्वेस्ट टू। बहुत ही थैंक डीप और बहुत ही अच्छी बात करी है आपने। थैंक यू सो मच। एंड वी really loved this session. बहुत मज़ा आया and please share your comments everyone. हम लोग ज़रूर सर, अगर हमें मौका मिले तो आपसे ज़रूर एक बार फिर से क्वेश्चंस पूछने के लिए भी बुलाएं तो आपको यू। जरूर तकलीफ दे जरूर सकते हैं। जरूर। थैंक समय यू सर, पहले थैंक यू फॉर विजिटिंग अस। पहले से एडवांस में बोल के आप जरूर दोबारा बुलाएं। बिल्कुल। अच्छा लगा बिल्कुल। आपसे बात करके, आपके व्यूअर्स से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। सो एज यू सॉ, प्रोफेसर उज्जवल के चौधरी जी आए थे हमारे शो पे एंड ही शेयर्ड अ लॉट ऑफ लवली गुड पॉइंट्स विद अस। उन्होंने बहुत सारी ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर काफ़ी लाइट थ्रो करी है एंड आई वुड से दैट इफ all of us understand the importance and the pros and cons for online education, we can together actually bring a change in our country. The way education system is actually struggling right now, हमें किसी तरह से उसके अंदर creative और engagement ज़रूर लानी चाहिए. While everyone may be following a particular course session, you know, probably people are struggling to finish the course and कैसे इसको पूरा करें, कितने students, कितनी attendance. I think more focus should also be on how creatively we can finish all the course in a better engaging manner, sharing, I'm going to repeat the points he mentioned, sharing engaging videos, sharing engaging animations. If you have any sort of such questions which you would want to ask us कि ये कैसे करें, हम आगे कैसे कोर्सेज दें, कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज़ करें, किस तरीके से आगे हम अपने स्टूडेंट्स को करें, स्टूडेंट्स को अगर कोई क्वेश्चंस है दिल्लिस्तान से वो भी हमसे पूछ सकते हैं कि किस तरीके से हम आगे इसको कितने आवर्स दें, क्या बैलेंस आउट करें हमारे लाइफस्टाइल में जिससे कि हमारी ऑनलाइन एजुकेशन भी रहे और हम फिजिकल आगे आइडियाज़ भी देते रहें. सो इट्स नॉट नेसेसरी दैट सारे डिसीजंस आपके स्कूल या आपकी अथॉरिटी ले रही है. यू आर वेरी मच, it's your right to also give ideas to your school, your management. It's okay. There's nothing like कि वो स्कूल है वो देखेंगे वो करेंगे. No, it's not necessary. You can actually write to your dean, you can write to your teachers as to what you think. It's not something like an against movement you're taking out. You can probably come out with another good idea and something which is creative. You can share your technology ideas with people, and that's how engaging it is. And in the end, I would say social distancing, as professor said, social distancing nahi, physical distancing करें. Socialize तो हम अभी भी कर रहे हैं. We are talking to you right now. Everyone is talking to each other online. हर कोई वीडियोस पे बात कर रहे हैं. But physical education, physical जो गैप है हम बना रहे हैं वो एप्ट है, बट नॉट सोशल डिस्टेंसिंग नहीं. सोशल डिस्टेंसिंग आई थिंक मैंने भी इस बारे में कभी ध्यान से सोचा नहीं. बहुत ही डीप मीनिंग है इसमें कि अगर आप फिजिकल डिस्टेंसिंग रखते हैं तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे. सोशल ना होकर हम अपना ही नुकसान करेंगे. सो इन द एंड आई वुड से थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो. आई वुड रियली 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 अप्रिशिएट अगर आप हमें और क्वेश्चंस भेजें, इनबॉक्स करें और हमसे क्वेश्चंस पूछें. Thank you so much. Thank you for watching this show. We'll be back again next Saturday on the Chat Trap Show with Vikram Rawal. कल पुपुल सागर आएंगी और आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग बातें करेंगी. जहां हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं उसके एकदम स्टेप ऊपर जॉब और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात होती है. बट ऐसी सिचुएशन में जहां
कोरोना वायरस ने काफ़ी पूरी दुनिया को हिला दिया है। ऐसी सिचुएशन में अगर आपके जॉब और बिजनेस में क्राइसिस आए तो किस तरीके से उसको हैंडल किया जाए। हम आपको ये नहीं बता सकते कि आप कौन सा जॉब और बिजनेस करें, लेकिन ऐसी सिचुएशन में किस तरह उसको हम संभालें, उन चीज़ों को किस तरीके से हम उनको टैकल करें, किस तरह मेंटली हम डिस्टर्ब ना हो, किस तरह स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजिकली हम अपनी लाइफ को बेटर बनाएं और एट द सेम टाइम घर पे एक बैलेंस, काम, बिल्कुल एक बैलेंस लाइफ रखें, जिससे कि बाकी लोगों को भी ऐसा ना लगे कि आप मानसिक तौर से थोड़ा परेशान हैं बिकॉज ऑफ योर जॉब और योर बिजनेस। इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आपकी बिजनेस या प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम है तो वो सामने सबको दिखाई दे। आप अपने अंदर भी एक कामनेस रख सकते हैं। इन्हीं कुछ बातों के बारे में कल पुपुल आपसे बात करेंगे और आपको बताएंगी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ज़रूर आगे हेल्प करेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर शो एंड आई लुक फॉरवर्ड टू host another great show next week. Thank you so much. Thank you. Namaskar. And thank you for staying tuned to Dillistan.